A very important question for everyone. What if I told you that the biggest obstacle which is holding you back from achieving your goals isn't your circumstances but your own mind? Life is just 10% about what happens to you and 90% that how you react to it. So build mental toughness to take control of your life. It's not about being born with, it's just about how to build it. Before jumping to mental toughness, I would like to share a very important concept that is about self-awareness. Self-awareness is just like a Google map where you find yourself and then it is followed by some commitments to do. Self-awareness is the skills that you need to master if you want to raise a shot in your game. Self-awareness is like a cursor on the Google map where you find yourself that where you are and then you make some commitments what to do next. So questions arise that how to build self-awareness. So मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें अपने बारे में पता नहीं, हम कैसे अपने बारे में जाने. So there are 3 questions which I want to say that you should ask yourself so that you can be self-aware. Question number 1, what are the things you really do well? Question number 2, what are the needs to improve on them? Question number 3, that how would you address the number 2? I would like to say that top performers basically observe themselves very closely. They monitor themselves, they monitor what is going inside their mind, and they ask themselves that how would they overcome the situation and how it's going the right way, and it's all done in a very systematic way. Motivation is just a fickle, it's just a willpower that comes and goes. Mental toughness isn't about an incredible dose of inspiration or courage. It's all about building the daily habit that allow you to stuck to a schedule. So building the consistency is very important. The role of habit is just like it helps you overcoming the challenges and distractions that come over and over again. Mentally tough people don't need to be very intelligent, more courageous or more talented. They are just more consistent, determined and stuck to their schedules and their habits. And regardless of obstacles, they just focus on the important stuff. It's just your habits that form the foundation that how you would build your mental beliefs. It's just your habits, not your circumstances. And by making your habits, by making your schedule, these things set you apart to becoming the best version of yourself. So before any delay, let's jump to the 5 most important steps to build mental toughness. सबसे पहला and the most important, the first one is delayed gratification. It's largely determine that how far you get in life. Such people prioritize long-term peace, pleasure and happiness instead of short-term pleasure. बड़ा गोल है ना, छोटे-छोटे डिवाइड किए हुए हैं आपने. उन छोटे-छोटे डिवीजन्स के ऊपर वो पूरी अपनी खुशी का सारा निचोड़ ना निकाल दें जो आपने आगे लॉन्ग टर्म पे जाके लेना. अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले करें, अपनी प्लेयर को थोड़ा सा डिले करते चले जाएं. टिप है यहाँ पे, यू कैन अप्लाई अ 10-minute rule or 10-minute strategy here that for 10 minutes don't react, don't be overwhelmed. आहिस्ता आहिस्ता इस 10 मिनट को थोड़ा करते करते ऊपर लेके चलते चले जाएं. It is the delayed gratification. Second important point to build mental toughness is show up on the tough days. I understand, बिल्कुल, it's very important. इंसान है ना, चलते थक जाते हैं. फिर एक पॉइंट आता है कि ब्रेक थ्रू होना शुरू हो जाता है, यार अब नहीं होगा, खत्म, फिनिश, अब नहीं होगा मजीद, अब नहीं चढ़ सकता मैं, मेरे बस में नहीं है. यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन दिखानी है और आपको थोड़ा सा रेजिलिएंट होना पड़ेगा. टफ डेज के ऊपर कभी भी अपने आप को बैकआउट ना करें. वहाँ पे अपनी प्रेजेंस जरूर शो करवाएं. लाजमी शो योरसेल्फ, मेक योर माइंड दैट नहीं करना है भाई, करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए करना ही करना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो अप ऑन द टफ डेज. Number 3 is don't dwell on the things, don't let a problem dominate your mind. Mentally tough people just focus on the things they are really want to do and they have a very good control on it. Set some decisions deadline. कोई भी छोटा सा डिसीजन लेना है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर डिसाइड कर लें. अच्छा यार फटाफट 5 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट में फैसला लेना है इस छोटे से काम को मैंने करना है या नहीं करना. कोई मीडियम लेंथ का आपका डिसीजन है या आप कह लो कि मीडियम सिवियरिटी का डिसीजन है, ना इतना वो छोटा है ना इतना बड़ा डिसीजन है, तो उसके लिए आप 5 घंटे ले लो. कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा डिसीजन लेना है, उसके लिए मैक्सिमम
मैक्सिमम 5 दिन ले लो, इससे ऊपर नहीं। ये आपकी डिसीजन डेडलाइंस है, अपने लिए डिसीजन डेडलाइंस सेट कर ले, क्योंकि आप जितनी छोटी से छोटी चीज में जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, आप उतना फंसते चले जाएंगे। सो अपने लिए डिसीजन डेडलाइंस जो है ना, उनको प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपको उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा जिनके ऊपर आपको कंट्रोल लेना चाहिए, और इस तरह आपको जो डिसीजंस लेने में भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 इज डेवलप प्रैक्टिस एम्पैथी। बहुत इंपॉर्टेंट, यकीन करें बहुत खूबसूरत चीज है एम्पैथी प्रैक्टिस करना। एक चीज सिंपैथी है, एक एम्पैथी है। एम्पैथी होता है कि आप उस सिचुएशन, किसी सामने वाले इंसान की सिचुएशन में अपने आप को रख के उसकी जगह पे रख कर सोचते हैं, फिर फील करते हैं यार अच्छा ये हो रहा है उसके साथ, ये वो ऐसा फील कर रहा है या वैसा फील कर रही है, ये चीज उस पर गुजर रही है। तो प्रैक्टिस एम्पैथी। ट्रस्ट मी, इट इज अ सुपर पावर। मेंटली टफ people don't take things personally. They always try to understand the point of others. It is the cornerstone of the life, and trust me, the cornerstone of the mentally tough persons. So if you want to practice empathy, तो अपना टारगेट रखने के रोज आपने एक नई इंसान के साथ बात करनी है और आपने उसके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश करनी है, उसके मेंटल सेटअप को रीड करने की कोशिश करनी है। आहिस्ता आहिस्ता इस प्रैक्टिस के साथ आपको ऑटोमेटिकली 1 मंथ के अंदर अंदर एम्पैथी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आप खुद इस बारे में यकीन करना शुरू कर दें कि यस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेच योर कंफर्ट जोन। यस, आई टोटली एग्री दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। योर कंफर्ट जोन, भाई मेरा कंफर्ट जोन, लोगों को कुछ लोग अपनी उनकी एक स्पेसिफिक सिटिंग पोजीशन है, उनका एक स्पेसिफिक सिटिंग एरिया है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट नथिंग कैन ग्रो इन अ कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कभी भी उन चीज़ों को मजीद नए नए तरीकों से, नई नई स्ट्रैटेजी से ट्राई करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं इससे बाहर निकला तो मैंने बेसुकून हो जाना है। सो हियर इज अ टिप फॉर यू। कुछ लोग रीडिंग के बहुत शौकीन होते हैं। सो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड यू डेली रीड 30 मिनट्स फॉर अ डे, सो आज आपने 30 मिनट्स पढ़ा, कल को आप 31 मिनट्स पे ले जाएं, नेक्स्ट डे 32 मिनट्स पे ले जाएं। छोटा छोटा स्ट्रेच करें। इतना लंबा एकदम स्ट्रेच करेंगे तो आप डिफॉर्म हो जाएंगे। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में रहते हुए छोटा छोटा अपने आप को कम से कम, मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेच करते ले जाएं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। सो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेके आए। सो इधर फटाफट से एक क्विक रिव्यू है आपके लिए कि हमने 5 चीजें डिस्कस की हैं मेंटल टफनेस के लिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, शो अप ऑन द टफ डेज, नेवर डिवेल ऑन द थिंग्स, एंड प्रैक्टिस एम्पैथी, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेच योर कंफर्ट जोन। एंड बिफोर गोइंग टू मेंटल टफनेस, वी ऑलरेडी हैव टू बी फोकस्ड फॉर द सेल्फ अवेयरनेस, which is very important. Trust me, habits और schedule आपको बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस में ले जाते हैं। अपनी इमोशनैलिटी पे फोकस करना सीखें। हम लोग इमोशनल होकर बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। मैं खुद बहुत इमोशनल पर्सन था, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर अप करने की कोशिश की, एंड आई एम ऑलमोस्ट वेरी मच रिकवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट, प्लीज कमेंट सेक्शंस में वो क्वेश्चंस बयान करें। आई वुड लाइक टू आंसर देम। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इफ यू like this video, please like, share and subscribe it. See you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेईमानिल्लाह।